Hello students, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with today's topic ribosome. Ribosome also called protein factory or engine of the cell. Okay, ribosome is submicroscopic naked ribonucleoproteinous granular structure. Okay, submicroscopic naked, not covered by membrane. Ribonucleoproteinous consist of RNA and protein. Okay, so it is riboproteinous granular structure present in the form of granules. Okay, it is found in all cells. It means prokaryotic and eukaryotic both. First of all, ribosome was observed by Palade. ठीक है, first observed by Palade in 1953. It is granular structure and present in all types of cells except RBC. ठीक है, present in all cells means prokaryotic and eukaryotic both. इसके पहले जो भी सेल ऑर्गेनल्स आपने पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ाया, ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, बट राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड absent in RBC except mammalian RBC. In RBC, ribosome are absent. Okay, ribosome present in both cell, prokaryotic and eukaryotic cell. In prokaryotic cell, it is formed in साइटोप्लाज्म. इसका फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में होता है. ओके, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस, Generally, you know, ribosome consists of RNA and protein. It means there are two components of ribosome, RNA and protein, and in nucleolus RNA is formed. न्यूक्लियोलस में आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और जो भी राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट्स है, दैट प्रोटीन्स आर आल्सो फॉर्म्ड ऑन राइबोसोम. प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम पर ही होता है विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए. ओके, प्रोटीन इज फॉर्म्ड ऑन राइबोसोम with the help of mRNA, means messenger RNA. There are three types of RNA: messenger RNA, ribosomal RNA, and transfer RNA. And RNA present in ribosome is rRNA.
rRNA means राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो 3 तरह का आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, एंड दीज 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट, राइबोसोम is also called organelle within organelle, organelle within organelle, because organelle within organelle, it means it is present inside the organelles also. In eukaryotic cell, inside the mitochondria and plastid, ribosome is present. Okay, so it is also called organelle within organelle. Next, types of ribosome. Types on the basis of Schwedt-Berg unit or sedimentation coefficient, सिंपली एस, जिसको हम सिंबल देंगे एस के फॉर्म में, ऑन द बेसिस ऑफ श्वेदबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, राइबोसोम इज ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट 70S and second 80S. S means sedimentation coefficient or Schwedt-Berg unit. ठीक है, it is directly, it measure the density and size. वैसा कोफिशिएंट जो कि डेंसिटी और साइज को मेजर करता है. और अगर हम कहें इट इज नॉट एडेबल, जिसको कि एडिशन नहीं किया जा सकता. सपोज दैट, अगर हम एग्जांपल ले, हमने ये मार्कर लिया, एक कैप है, लेंथ ऑफ दिस कैप इज 5 सेंटीमीटर सपोज दैट, एंड लेंथ ऑफ दिस इज 50 सेंटीमीटर. ठीक है, एक 15 है और एक 5 है, दोनों को मिला दे तो लेंथ होना चाहिए 15 + 5 = 20. लेकिन देखिए, तो अगर हम इस रूप में इसको मिला दें, अब इसका लेंथ अगर हम ऐसे मिलाते हैं तो इसका लेंथ 15 + 5 इट मीन्स 20. लेकिन अगर हम इस रूप में मिलाएं, सम पार्ट इज ओवरलैप टू ईच अदर, कुछ पार्ट एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया, और जब ओवरलैप कर जाता है तो रिजल्ट क्या होता है कि अब इसका जो लेंथ होगा 20 नहीं होगा, कुछ न कुछ 20 से कम होगा, मोर देन 15 एंड लेस देन 20. तो सेम कंडीशंस यहाँ भी है, जिसको कि हम डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, राइबोसोम इज ऑफ 2 टाइप्स, 70S and 80S. 70S found in cytoplasm of prokaryotic cell. Cytoplasm of prokaryotic cell and in cell organelles of eukaryotic cells. Cell organelle of eukaryotic cell. Okay, and you know, in 2 cell organelles, in mitochondria and plastid, यही 2 सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल का है जिसमें राइबोसोम होता है. एंड द राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड माइटोराइबोसोम. ओके, and the ribosome present in plastid is called
प्लास्टिडोराइबोसोम, प्लास्टिडोराइबोसोम, it means mitoribosome, plastidoribosome and ribosome of prokaryotic cells are 70 steps. Okay, and in eukaryotic it means in cytoplasm or on the membrane of endoplasmic reticulum nucleus 80s ribosome present in eukaryotic cell. 80s ribosome found in cytoplasm of eukaryotic. यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल्स में 70s, लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो 80s. ओके, इन साइटोप्लाज्म राइबोसोम प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म. Free form means scattered in cytoplasm, scattered in cytoplasm or attached with membrane of ER and nucleus, attached with the membrane of ER and nucleus. Attached with membrane of ER and nucleus with the help of राइबोपोरीन प्रोटीन. इन दोनों के अटैचमेंट के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज राइबोपोरीन. ओके, नाउ सी इन साइटोप्लाज्म राइबोसोम प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म. But in some cases, it is also found in the form of polyribosome. Okay, in the form of polyribosome in cytoplasm. It is also found in the form of polyribosome, also called polysome. Polyribosome or polysome. Poly means many. It means group of ribosome. बहुत सारे राइबोसोम का ग्रुप अगर मिल जाए इस रूप में तब इसका नाम देंगे हम पॉलीराइबोसोम. नाम क्या देंगे? पॉलीराइबोसोम. लेकिन बात आती है कि पॉलीराइबोसोम में जो भी एक से अधिक राइबोसोम है वो एक दूसरे से अटैच कैसे है. तो आप ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ पॉलीराइबोसोम मेनी राइबोसोम मोलिक्यूल्स are attached with mRNA, मैसेंजर आरएनए. सपोज दैट एक राइबोसोम ए है, दूसरा राइबोसोम ए है, तीसरा राइबोसोम ए है, इस तरह से बहुत सारे राइबोसोम है और सभी राइबोसोम एक दूसरे से अटैच है. किसके हेल्प से? मैसेंजर आरएनए की हेल्प से. और हम आगे देखेंगे मैसेंजर आरएनए का जो पोजीशन है, जो भी अटैचमेंट है बिटवीन द टू सब यूनिट, दिस लाइक ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट. वन इज लार्जर सब यूनिट, अदर इज अ स्मॉलर सब यूनिट. ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट के बीच से अटैच होता है. ऐसे ऐसे बहुत सारे राइबोसोम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और बनाता है क्या? पॉलीराइबोसोम, ऑल्सो कॉल्ड पॉलीसोम. ओके, नाउ वी सी the subunit of ribosome. Ribosome have two types, 70S and 80S. 70S consist by combination of two subunit, 50S and 30S. देखिए बात आ गई, 50 एंड 30. ऐसे 50 और 30 जोड़ेंगे 80 होगा, लेकिन 50 प्लस 30 ऐसे हम बात करें जनरल 50 प्लस 30 इक्वल टू 80. बट
50s plus 30s इक्वल टू 70s। एस जो है स्वेदबर्ग कोफिशिएंट, जिसको कि हम जोड़ नहीं सकते हैं ओवरलैपिंग का। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दोनों सब यूनिट एक दूसरे पर ओवरलैप करता है। सो 70s कंसिस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 50s एंड 30s एंड 80s कंसिस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 60s एंड 40s। 60s प्लस 40s इज इक्वल टू 80s। ठीक है, आगे देखते हैं। Now see, each ribosome consists of 2 subunit. Each ribosome consists of 2 subunits. One is called larger subunit, other is called a smaller, larger and a smaller. Smaller. Okay. In case of 70s ribosome, 50s plus 30s. 50s larger subunit, 30s smaller subunit, and in case of 80s ribosome, 60s plus 40s means larger 60, a smaller 40. And each subunit also consists by combination of a smaller RNA, ribosomal RNA और units। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, देखें, सपोज दैट दिस इज 70s राइबोसोम consist of 2 subunit this like, one is larger, other is smaller, larger, a smaller. In case of 80s ribosome, one is larger, okay, other is smaller। ठीक है ना। अब देखिए, यह 2 आरएनए, एक 70s और एक 80s। लार्जर सब यूनिट ऑफ 70s इज 50s, दिस इज 50s एंड दिस इज 30s। लार्जर सब यूनिट ऑफ 80s इज 60s, a smaller 40s। ठीक है ना, 30। अब देखिए, these sub unit also consist by combination of more than one RNA. In case of 70s ribosome, larger subunit में अगर बात करें तो 23s rRNA, ribosomal RNA, and 5s rRNA. But in a smaller subunit 16s rRNA are present, यानी इसका भी यूनिट हो गया। एंड यू नो राइबोसोम कंसिस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, तो ये तो आरएनए हुआ। और यहां देखें तो इसमें जो प्रोटीन का टाइप्स होगा वह 34 प्रोटीन मोलिक्यूल होगा, 34 प्रोटीन मोलिक्यूल। किसमें? लार्जर में। एंड इन केस ऑफ स्मॉलर 21 प्रोटीन मोलिक्यूल। यह स्ट्रक्चर हो गया 70s राइबोसोम का। नेक्स्ट 80s लार्जर स्मॉलर। इन लार्जर 3 टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज प्रेजेंट, 20s, 28s rRNA, 5.8s rRNA and 5s rRNA. In a smaller subunit, only one 18s rRNA. rRNA राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, बार बार नाम बता रहा हूं मैं। rRNA राइबोसोमल आरएनए, mRNA मैसेंजर आरएनए, tRNA ट्रांसफर आरएनए। तो यहां जो होगा राइबोसोमल आरएनए। And in larger subunit of 80s ribosome, 40 molecules of proteins are present. 40 molecules of protein. And in a smaller subunit, 30 molecule of proteins. 30 proteins. ठीक है,
तो ये सभी मिलकर राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, these two subunits means larger subunits and a smaller subunits are attached with the help of magnesium ion. It means यहां लिख देते हैं larger and a smaller subunit are attached with the help of मैग्नीशियम आयन। ठीक है, मैग्नीशियम आयन इज रिक्वायर्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ लार्जर सब यूनिट विथ अ स्मॉलर सब यूनिट। ओके, एंड जनरली मैग्नीशियम आयन फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड between two subunits, दो यूनिट्स के बीच में मीन्स लार्जर और स्मॉलर के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। किसके हेल्प से? मैग्नीशियम आयन के हेल्प से, जिसके कारण कि वह दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे जरा सा फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन फॉर्मेशन and also called protein factory. Function of ribosome. Protein synthesis. It is the site of protein synthesis. Actually है, थोड़ा सा प्रोसेस समझ लें। मान लिया जाए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है तो डीएनए है। सपोज दैट यहाँ डीएनए हमने बताया, DNA. First of all, RNA molecules are produced from DNA molecules. इस DNA से बनेगा क्या? RNA. And formation of RNA from DNA is called transcription. प्रोसेस का नाम दिया हमने ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का फॉर्मेशन हुआ न्यूक्लियस के अंदर। अब यह RNA न्यूक्लियस में बना, न्यूक्लियस से चला आया साइटोप्लाज्म। ओके, आरएनए 3 टाइप्स, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब देखिए, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कैसा प्रोटीन बनना है, यह मैसेज दिया डीएनए दिया आरएनए को, मीन्स मैसेंजर आरएनए को। अब यह मैसेंजर आरएनए आ गया, राइबोसोम से अटैच हो गया इस रूप में। एमआरएनए यहां आया, एमआरएनए अपने साथ लाया क्या? तो मैसेज लाया प्रोटीन सिंथेसिस का इन द फॉर्म ऑफ कोड। हम लोग आगे देखेंगे, एक कोड के फॉर्म में मैसेज लाया। यू नो, प्रोटीन कंसिस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस का कोड मैसेंजर आरएनए पर है। किस एमिनो एसिड के बाद कौन जुड़ेगा, तो ये कोड लाया कौन? मैसेंजर आरएनए। और इस कोड के अनुसार टीआरएनए ट्रांसफर एमिनो एसिड्स, कैरी एमिनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड्स है। अब पहला एमिनो एसिड कौन है, इसके बाद का एमिनो एसिड कौन है, इसके बाद का एमिनो एसिड कौन है, ये इंफॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए। और इस इंफॉर्मेशन के अनुसार ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को ट्रांसफर कर दिया राइबोसोम पर। तो पहला राइबोसोम एमिनो एसिड आ गया, एमिनो एसिड फर्स्ट इस कोड के अनुसार। फिर दूसरा कोड है वो लाया एमिनो एसिड सेकंड, और सभी एमिनो एसिड यहाँ जुड़ जाता है। रिजल्ट क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सो राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री और इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोसेस हम आगे फिर डिस्कस करेंगे, डीएनए आरएनए जान जाएंगे तो। ठीक है, ऐसे प्रोटीन का टोटल प्रोसेस जो प्रोटीन फॉर्मेशन का पढ़ना है वो क्लास 12th में। ओके, आगे नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दैट इज साइटोस्केलेटन। Skeleton means framework, cyto means cell. The structure that forms framework of the cell that provide mechanical support, internal support
is called cytoskeleton. Cytoskeleton means a skeleton or framework of cell. Okay, there are three structure responsible for framework for mechanical support of the cell, that are microtubule, microfilament and intermediate filament. Okay, microtubule, microfilament एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. जैसा कि नाम से देखिए पता लगा है, ट्यूबूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, माइक्रोट्यूबुल इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोफिलामेंट इज फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट इट मीन्स डायमीटर ऑफ दिस फिलामेंट बिटवीन द माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुल. इन दोनों के बीच का जो डायमीटर होगा वह इंटरमीडिएट फिलामेंट का होगा. जनरली माइक्रोट्यूबुल कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. माइक्रोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ एक्टिन प्रोटीन. Myosin may be present in little amount, may be present, mainly actin. And intermediate filament consist of keratin, desmin, etc. Different types of protein present in intermediate filaments. Okay, और भी अगर कर सकते हैं तो केराटिन हो गया, डेस्मीन हो गया, भाइमेटीन हो गया, दीज ऑल आर प्रोटीन्स. ठीक है ना. देखिए, माइक्रोट्यूबुल कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ केराटिन, डेस्मीन एंड भाइमेटीन प्रोटीन्स. ओके, माइक्रोट्यूबुल इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ग्रुप और इन बंडल. प्रेजेंट इन ग्रुप और सिंगल भी कर सकते हैं, अकेले भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है. ठीक है. एंड ईच माइक्रोट्यूबुल ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, अगर इस ट्यूब की बात करें हम तो इसका जो वाल है, वाल कंसिस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स. वाल कंसिस्ट by combination of 13 protofilament. यानी इसका अगर स्ट्रक्चर हम सेक्शन काट कर देखें तो इस रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से 13 का अरेंजमेंट होगा तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. और इसका एक का नाम देंगे हम प्रोटोफिलामेंट. ठीक है. ये क्या कहलाएगा? प्रोटोफिलामेंट. ट्यूबुलिन प्रोटीन ऑल्सो प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स. ट्यूबुलिन प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स. One is called alpha, one is called beta. Alpha tubulin and beta tubulin, and both are present in alternative way. एक अल्फा ट्यूबुलिन होगा, उसके बाद बीटा प्रोटीन है, जो ही आप बात कर रहे हैं अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, और दोनों को मिलाकर के नाम हम देते हैं डायमर. डायमर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स. सो अल्फा एंड बीटा प्रोटीन्स और ट्यूबुलिन प्रेजेंट इन अल्टरनेटिव 1 अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा, और ये सभी मिल करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसका कि नाम देते हैं माइक्रोट्यूबुल. ओके, चलिए यहां हो गया एक्टिन फिलामेंट, जनरली कंट्रैक्टाइल इन नेचर,
जैसा कि आप मसल्स में पढ़ चुके हैं, अगर एक्टिन है, कुछ मायोसिन है, एक दूसरे पर स्लाइड करेगा, रिजल्ट क्या होगा, इसमें कंट्रैक्शन की कैपेसिटी हो गया. सो इट इज एबल टू कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड्स. नेक्स्ट, इंटरमीडिएट फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ केराटिन, भाइमेटिन एंड प्रोटीन, and it forms basket like structure. For basket like structure around nucleus. अब देखिए, मैं साइज की बात किया, सबसे ज्यादा डायमीटर माइक्रोट्यूबुल का, उससे कम माइक्रोफिलामेंट का, इंटरमीडिएट का जो होगा इन दोनों के बीच में होगा. अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका होगा डायमीटर 25 नैनोमीटर, डायमीटर 25 नैनोमीटर, माइक्रोफिलामेंट 6 to 7 नैनोमीटर, इंटरमीडिएट 8 to 12 नैनोमीटर, दिया डायमीटर. ठीक है. एंड दीज थ्री स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल एंड ऑल्सो कॉल्ड साइटोस्केलेटन. क्लियर. चलिए बाकी हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके.